series object attributes. Today we discuss. Actually, we have a different type of attributes like we have index. We have okay. We have values. We have d type, मतलब data type. We have shape of series, and bytes का मतलब है number of bytes. We have and dim डायमेंशन, नंबर ऑफ डायमेंशन, हालांकि ये तो हमेशा बनी रहेगी कि सीरीज आपका वन डायमेंशन एरे होता है. साइज, आइटम साइज, वी हैव हैज, नॉट ए नंबर्स एंड एम्प्टी. We have these all attributes related to series. Okay, if you want to access the all information related to series attribute, we can find out. If you find out the index, all indexes, find out all values, the data type of the series, you find out the shape, number of bytes, number of dimensions, size, item size, has a नॉट ए नंबर मीन्स अगर उस सीरीज में कोई नॉट ए नंबर NaN है तो, और अगर सीरीज एम्प्टी है तो लाइक दिस. ओके, सो इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट, लेट एम क्रिएटिंग एस import pandas as pd, and I am creating series pd.series, assigning to, and if I check print as dot empty. Okay. If I check in that situation, what it will print? It will print if अगर सीरीज अगर हमारी empty है, it will print. यहाँ पर आप अभी वार्निंग मैंने कल आपको बताया कि इसके रीजन, राइट. यहाँ पर हम केवल ये बात देखिए, अगर सीरीज हमारी एम्प्टी है तो ये क्या अटेंड करेगा, ट्रू. इफ सीरीज हैव सम एलिमेंट्स, लेट्स सपोज सीरीज हैव सम एलिमेंट्स 10, 15, 20, लाइक 0, इन दैट सिचुएशन इट विल रिटर्न ट्रू, फॉल्स, सॉरी. ओके, तो एम्प्टी जो एट्रीब्यूट है ये अगर सीरीज हमारी एम्प्टी है तो ट्रू रिटर्न करता है, और एम्प्टी नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करता है. बाकी सारे एट्रीब्यूट्स को हम अभी डिस्कस करते हैं. एक सीरीज बना लेते हैं, राइट, और इस पर हम बारी बारी से सारे एट्रीब्यूट्स को एक्सेस करते हैं. लेट मी क्रिएट ए सीरीज. I have sections. I have section in the school, and as I told you yesterday, I have sections A, B, C, I have multiple sections. For farewell party, I have told you yesterday, and the total collection. So total collection by section A is, I said, 10,000, and total section by section B 2,000, total section by section C 3,000, or should I say 5,000, and I have 5 to 0, like this. And if I print S1 if I create a series, so I do pd.series, series. I'm passing data means that is collection, COL, and index, that is sections, right, and I assign to S. And if I print S, it will print the series, right, with index and all. But my requirement is what? My requirement to print all the things related to this. Okay? So here I am creating. I'm not printing the series actually. I want to print like here I am taking
And here I am printing series info, series info, series वो मतलब information, right? यहाँ पर मैंने एक एट्रीब्यूट नेम ले लिया, एक हेडिंग ले ली, ये कुछ हमें इस तरीके से दिखेगा जब हम सीरीज को रन करेंगे कि एट्रीब्यूट नेम आ रहा है और उधर दूसरी साइड हमारी सीरीज की इन्फो आ रही है ना। तो जो अभी हमने डिस्कस किया कि सीरीज की इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रिंट कर सकते हैं, दैट इन्फॉर्मेशन। सो आई एम प्रिंटिंग हियर वन लाइन एंड यू कैन सी लाइक line I'm printing here. Okay. I'm printing one by one all attributes. So first attribute I'm printing. Print. The attribute name is ttype. Okay. I'm using colon /t. I'm using s dot ttype. Okay. This is first as equal to td dot series. I am creating here collection comma sections. Okay. And if I run this, so first I have data type int, data type and their name. Okay. And I am doing attribute name, attribute ATRI. Attribute, I make it a short. I use two blanks. I raised it. Okay, something like this. Okay, so data type and उसका data type आ गया हमारे सीरीज का. Second हम लोग use कर रहे हैं. Second attribute we have. Okay, let me show you. Second attribute we have shape. Let's suppose shape. I'm printing data type here shape हम लोग यूज कर रहे हैं. Next we have number of bytes, n bytes, n bytes means the number of bytes taken by data from this series. Okay, n bytes. Next we have we have number of dimension and number of dimension. It's always one because in series we have a one dimension array, one dimension series, a one dimension data type, you know that. Next we have as not a number. Let me create one. So देखिए डेटा टाइप जो इसका एरे का है वो है 4. इफ आई एम टॉकिंग अबाउट शेप, देखिए 4 कॉमा दे रहा है. कॉमा का मतलब ये है कि सेकंड डायमेंशन इसमें होती ही नहीं है. तो 4 क्यों दे रहा है? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हमारे 4 है, 1 2 3 4, राइट. अगर बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट यहाँ पे 5 होते तो क्या शो करता है? 5 शो करता है. ठीक है. उसके बाद n बाइट्स मतलब टोटल साइज कितना लिया? 32. ठीक है. एंड डिम डायमेंशन कितनी है? 1 है. एंड आइटम साइज का यहाँ पर मतलब हो गया आपका 8. ठीक है. इंट 64 जो आइटम साइज आएगा वो आएगा 8 बाइट, यानी कि इंडिविजुअल एलिमेंट हमारे कितनी बाइट ले रहा है? 8 बाइट ले रहा है. ठीक है. तो टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी निकल के आई? 8 4 जा 32. टोटल नंबर ऑफ बाइट्स कितनी निकल के आई? 32. इट मींस मेमोरी के अंदर कितना साइज ले रहा है? एक्चुअली क्या होता है कि आपकी जो मेमोरी है बच्चों जो आपकी, वो आपको पता होगा कि बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट, है ना. फिर आता है बाइट्स, राइट. फिर आता है केबी किलो बाइट, फिर आता है एमबी मेगाबाइट, फिर आता है जीबी गीगाबाइट और टीबी. यहाँ तक आपने सुना टी टेराबाइट, टीबी नॉट टीबी, इट्स अ टीबी टेराबाइट. बिट बाइट किलो बाइट एमबी जीबी एमबी, दीज आर द मेजरमेंट यूनिट्स, है ना. तो यहाँ पे जो हमारा ये जो 1000 है, ठीक है. एक्चुअली पाइथन के अंदर डेटाबेस का इतना इंटरनल कंसेप्ट नहीं है, तो बस इतना समझेंगे कि 1000 जो है वो 4 बाइट ले रहा है. अगर हमारा डेटा टाइप int 64 है तो वहाँ पर एवरी एलिमेंट टेक्स
4 बाइट टू स्टोर द डेटा। ठीक है, कितने बाइट? 4 बाइट। तो कितने कितने 8 बाइट। तो कितने एलिमेंट है? 4 एलिमेंट। तो 8 4 जा 32। लेट मी इंक्रीज वन एलिमेंट, राइट? लेट मी शो यू this one thing. Just I'm creating one more. I'm creating E, and I'm increasing one more. Okay, let me do it. You can see here the number of bytes is 40 now. Why these are 40? Because every element take 8 bytes and 8 5s are 40. You can see dimensions is change. Oh sorry, shape is change. 5 हो गई है shape अब। इस तरीके से हम ये कर सकते हैं। एंड वन थिंग यू हैव, आपको पता ही है कि आप प्रिंट स्टेट टाइप फंक्शन से एक्चुअल में इस का टाइप चेक कर ही सकते हैं, वो तो आपको पहले से ही पता है। टाइप जो कि पाइथन का हमने पहले पढ़ा था। तो ये हमारा जो है, ये जो सीरीज है, ये सीरीज और एंड पांडास, ये कुछ इस तरीके से है। पांडास की एक सब डायरेक्टरी है स्कोर की सब डायरेक्टरी सीरीज, और उसके अंदर ये हमारी डेटा टाइप है सीरीज। ये डेटा स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं सीरीज। ठीक है, ये मैंने बताया आपको एक बेस पर। अच्छा, सपोज अगर मैं यहाँ पर कर लेता हूँ डेटा चेंज, लेट मी चेक द चेंज द डेटा। यहाँ पे मैं कुछ अलग हूँ, ठीक है। एक्चुअली सब कुछ सेम है, मैंने एलिमेंट्स ले लिए। इसमें यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एन को भी डाल देता हूँ। ठीक है, ये जो आ रहा था ना हैज नंबर, अभी तक तो देखो क्या आ रहा था, अभी तक कुछ और आ रहा था। इंपोर्ट numpy एस एन। देखो अभी मेरे पास वो डेटा है नहीं, मैं इसको रन कराता हूँ। देखिए अब जो हैज ए नंबर है वो आपको शो करेगा। ओके, एट्रीब्यूट्स एन must be not in, right? It's done, and you can see has n a n। तो यहाँ पे क्या आ गया बच्चों? 4 आ गया। और देखिए यहाँ पर भी ये जो एलिमेंट है 64 बिट आ रहा है, फ्लोट 64, ये भी बच्चों 8 बाइट लेता है एक वैल्यू को स्टोर करने के लिए। और देखिए यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज आ रही हैं। एंड इफ आई वांट टू प्रिंट दिस, let me show you. If I print the series, so I can print this. Okay, so all values are converted into the float because I use an, not a number, right? So that's why all values are converted into the float. 1000 to अभी देखिए यही जो वैल्यू थी वो मेरी इंटीजर दिखा रहा था, मैंने जैसे एन लगाया तो उसने सबको किसमें चेंज कर दिया? फ्लोट में चेंज कर दिया। फ्लोट इंडेक्स एंड वन इज वैल्यूज। तो इंडेक्स जो हमने दिया बच्चों वो एक साथ आ जाएगी और वैल्यूज हमारी एक साथ आ जाएगी। ठीक है, दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। I run this, I'm creating one more new 5, and yeah, you can see all the indexes, data type इसका क्या है? Object, and all the values are there, 1000, 2000, 5000, 3000 and n, right? इंडेक्स डेटा टाइप ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमने ये स्पेसिफिक अपने हिसाब से किया। ठीक है, हमने अपनी एक यहाँ पर इंडेक्सिंग बनाई है, इसलिए इसको ऑब्जेक्ट टाइप ले रहा है। ऑब्जेक्ट टाइप एक ऐसा डेटा टाइप होता है बच्चों जो किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर सकता है, चाहे वो इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई पिक्चर हो, कोई वीडियो हो, हर किसी को ये एक्सेस कर सकता है। ऑब्जेक्ट टाइप, राइट? इन फ्यूचर हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। देखो ऑब्जेक्ट को अगर मैं समझाना चाहूँ तो ऑब्जेक्ट इतना है। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है एक रियल वर्ड एंटिटी। क्या है? रियल वर्ड, वर्ड एंटिटी, ENTITY। द रियल वर्ड एंटिटी का मतलब है एक ऐसी चीज जो रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है ना, वो सब कुछ ऑब्जेक्ट होता है। अब देखो यहाँ पर बाकी लैंग्वेजेस में क्या होता था, इंटीजर हो गया है ना, फ्लोट हो गया, कैरेक्टर हो गया, है ना, कुछ स्पेसिफिक डेटा टाइप। उसके बाद जब C++ आई, उन्होंने कहा कि हम भाई एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बनाएंगे, जहाँ पर हम कोई भी रियल वर्ल्ड एंटिटी है, जैसे पर्सन है, पर्सन को किस में रखो? ऑब्जेक्ट में रखो। स्टूडेंट है, स्टूडेंट की कैटेगरी किस में होगी? ऑब्जेक्ट में। ठीक है,
मैं हूँ, आप हैं, हमारी एंटिटी किस में होगी, ऑब्जेक्ट में, ठीक है। हम कोई इंटीजर तो है नहीं, हम कोई फ्लोट तो है नहीं, हम कोई कैरेक्टर तो है नहीं, हम किस में आएंगे, ऑब्जेक्ट्स में आएंगे। तो यहाँ पर एक नया डेटा टाइप इंट्रोड्यूस किया, जिसको हमने कहा जिसको इंट्रोड्यूस करने का रीजन था ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंडर उसको इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को प्रोग्रामिंग में इम्प्लीमेंट कर सकें, उनके लिए उनको स्टोर करने के लिए एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप बना सकें। तो वहाँ पर ये डेटा टाइप ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है ना। C++ ने स्टार्ट किया, फिर जावा ने इसको और मॉडिफाई किया, पाइथन ने तो बहुत हाईली लेवल पे इसको मॉडिफाई किया हुआ है। तो ऑब्जेक्ट का मतलब कोई भी रियल वर्ल्ड चीज़ जो भी रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती है वो हमारी क्या कहलाएगी, ऑब्जेक्ट कहलाएगी। तो अब यहाँ पर इन्होंने इंडेक्स तो पहले से फिक्स कर रखा था कि भाई इंडेक्स हमारी 0 बाय डिफॉल्ट ले लेगा, बट आई एम क्रिएटिंग माई इंडेक्स, राइट। तो सेम वे इफ आई एम क्रिएटिंग माई इंडेक्स, तो उन्होंने इसको किस में डाल दिया, डेटा टाइप किस में डाल दिया, ऑब्जेक्ट के अंदर डाल दिया, ठीक है। So these are the all attributes related to the series data structure. Okay. Next we have accessing. Next we have accessing series object, and its attributes। सीरीज के ऑब्जेक्ट हमें एक्सेस करना है, तो देखिए वो तो बड़ा आसान है, ये तो अभी तक हम करते ही आए। सीरीज ऑब्जेक्ट्स मतलब सीधे मैंने क्या किया, यहाँ पे एस दिया और मेरा सीरीज का ऑब्जेक्ट एक्सेस हो गया, है ना। डेटा पूरा जो डेटा मैंने असाइन किया पूरा एक्सेस हो गया, ठीक है। दिस इज पॉसिबल। एंड द थिंग इज व्हाट, इफ आई वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल, इफ आई वांट टू एक्सेस इंडिविजुअल, accessing individual elements. Now if I want to access individual element, then I need to give object, मतलब this is S is what, a series object with index, ना, with index. If I am writing A, that's in that situation it will print. If I am accessing E, let's suppose E, it will print, because at the place of E, NA, not a number, right? Not a number. Let's suppose if I'm passing 0, then what happens? It will print 1000. देखिए यहाँ पर एक समझने वाली बात ये है कि this is what that A, B, C, D and E. This is what index, and this is what index, right? And the value of A is 1000 at index, B is 2000, है ना, C is 5000, है ना, and 5200, right? And N, like this. The question is, sir, we provide our index, है ना, हमने अपनी index provide कर रखी है, this is the data, हमने अपनी इंडेक्स प्रोवाइड कर दिया। सो इफ आई प्रिंट एस ऑफ ए, इफ आई प्रिंट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, इफ आई प्रिंट एस ऑफ ए, ठीक है, 1000 शुड बी प्रिंटेड, नो प्रॉब्लम। बट इफ आई प्रिंट एस ऑफ 0, देन व्हाई 1000 इज प्रिंटेड? आई एम नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्स लाइक 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। एक्चुअली देखिए सीरीज करता क्या है, अगर आपने अपनी इंडेक्सिंग दे भी दी है, फिर भी सीरीज इंटरनली एक सीक्वेंस मेंटेन करेगा डेटा का, 0 1 2 3 एंड 4। राइट नाउ if you are providing your own index, in that situation this is called a sequence of data. This is called what? Sequence of data, right? And suppose
If you are not providing this index, so this sequences become the index as well, right? यही सीक्वेंस क्या बन जाता है, इंडेक्स बन जाता है. लेकिन अगर आप इंडेक्स अपनी दे रहे हैं तो दिस इज कॉल्ड द सीक्वेंस. सो यू कैन एक्सेस any individual elements of series by helping of sequence or by giving your by your index. ठीक है, आपने जो इंडेक्स गिवन की है, आपने जो इंडेक्स बनाई है, राइट, वो भी उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं, ताकि आप जो एक इंटरनली एक सिस्टम बनता है उससे भी आप एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है. नाउ सर, आई हैव ए डाउट. आई हैव वन डाउट. द डाउट इज व्हाट? Sir, yesterday you told us if we have a duplicate index. Sir, yesterday you told us we can have duplicate index. In that situation, if I access that index, if I access that index, I am accessing D and D, and at the D there are the two values. One is 500 and one is NaN. So what happened with this? Let me show. In that situation, what happens? If a key, if a index belong to more than one data items, okay, in that situation, all the values related to that index will be accessible. Okay, if this index belong to three data values, so if I access this D, then all the values will be accessible. ठीक है. तो डुप्लीकेट इंडेक्स हो सकती है, लेकिन अगर हम इंडेक्स वाइज अगर हम देखें कि भाई हमें इंडेक्स वाइज एक्सेस करना है, तो यस डेफिनेटली पॉसिबल. तो वो सारा आपका उस इंडेक्स पर जितना भी डेटा होगा वो हमारा एक्सेसिबल होगा ही होगा. ठीक है. नाउ स्लाइस like other sequence, we can also apply slicing operator on series also. Okay. So I'm creating a series and we import pandas creating pd dot signing tools. And how can we apply? Print slice. You can see by this all the elements of series will be printed. Okay, no problem. Just wait. All the elements are printed, and one thing is notable here, that 0 1 2 3 4 5 these are the index, we can say, because I am not providing my index. And we can say also these are what these are the position, these are the sequence internally. Okay, so slicing work on position, that is what, like I am writing 10 20 20. Okay. So maybe their index A B C D and all. Okay, like I just created once here, just comma index if I print S, I provided my indexing here ABC. Internally that internally one more position is created, that is 0. I told you yet just 1 2 and 3. This is my index, which I created. Internally this position created by PVM, Python virtual machine.
फॉर सीरीज, ठीक है। सो इंडेक्सिंग विल वर्क ऑन दिस पोजीशन, नॉट ऑन इंडेक्स, ठीक है। तो ये जो हमारा स्लाइस ऑपरेटर है ना, ये स्लाइस ऑपरेटर हमारा किस पे काम करेगा, पोजीशन वाइज काम करेगा, ना कि इंडेक्स, ठीक है। आई जस्ट राइटिंग हियर slicing take place position wise, okay? Position wise, not index wise, ठीक है। इंडेक्स वाइज ये काम नहीं करेगा, ये पोजीशन वाइज काम करेगा। अगर मैं कोई इंडेक्सिंग नहीं करता हूँ तो बच्चों वहाँ पर भी इंटरनली पोजीशन क्रिएट होती है, और पोजीशन को हम जनरल भाषा में इंडेक्स कहते हैं। तो पोजीशन तो हमेशा क्रिएट होगी, जो भी आप डेटा वहाँ प्रोवाइड करेंगे तो पोजीशन तो हमेशा ही क्रिएट होगी। तो जो हमारा ऑपरेटर है वो इंडेक्स वाइज काम नहीं करेगा, पोजीशन वाइज, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको, लेट मी राइट। अब देखो मैंने यहाँ पे लिखा 1 कॉलन, तो क्या करेगा, क्योंकि इंडेक्सिंग तो 0 से स्टार्ट होती है, क्या करेगा 10 को छोड़ देगा, 20 30 40, ठीक है। जबकि मेरी इंडेक्स क्या है, ABCD, इट विल प्रिंट 20 30 40, ठीक है। आई से 10 लास्ट and I write here 10 and here, ठीक है। So this is what step, ठीक है। तो 20 प्रिंट करेगा, 1 से स्टार्ट करेगा, 20 प्रिंट करेगा, एक छोड़ दिया फिर 40 प्रिंट करेगा, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टेप क्या दे दिया, 2 दे दिया। बाइट फॉल क्या होता है, 1 होता है, राइट। इफ आई एम राइटिंग माइनस कॉलन माइनस, तो इट इज रिवर्स इंडेक्सिंग, ठीक है, पॉसिबल है। सो इट विल प्रिंट 20 30, ठीक है, 20 30 -1 है, आई एम गिविंग, राइट। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, सेम वे, राइट। जैसे पहले हो रहा था ऐसे बिल्कुल सेम वे ये पॉसिबल है। let me clear this ID, it will print reverse, 40 40 30 20 and 10, ठीक है। तो पीछे से -1 मैंने ले लिया क्योंकि इंटरनल यहाँ पे -1 -2 -3, ठीक है। लाइक 40 30 20 and 10, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4। तो हम स्लाइसिंग की जो रेस्ट ऑफ ऑपरेशंस थी, स्लाइसिंग की जो रेस्ट ऑफ फैसिलिटी थी, वो सारी काम करेंगे एक्सेप्ट वन, दैट इज कि स्लाइस ऑपरेटर यहाँ पर इंडेक्स वाइज काम नहीं करेगा, यहाँ पर स्लाइस ऑपरेटर पोजीशन वाइज काम करेगा, ठीक है। जो पोजीशन इंटरनली हमारा सीरीज को मिलती है उस पोजीशन वाइज यहाँ पे काम करेगा, और ये आपका स्लाइस इंडेक्स वाइज काम नहीं करेगा, ठीक है। So this is all about element accessing and series object accessing, right? Individual कैसे access करना है, series wise कैसे access करना है, this is all about it. And tomorrow we discuss, tomorrow we end this data structure, series data structure we will complete tomorrow, है ना? And after tomorrow we will start data frame, okay? The second data structure, second fundamental data structure of pandas.